وہ لوگوں اس کی قدر معلوم نہیں، اس کے اوقات معلوم نہیں، اس کے احترام معلوم نہیں۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں دنیا والے کسی بڑے لوگ کا احترام کیا کرے، لہذا اس کا کوئی قدر کیا کرے، لہذا اس کو اچھا کہا کرے۔ دنیا والے کسی کو کوئی بڑا کہے یا اچھا کہے، مگر مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا والے کی بات غلط ہو سکتی ہے، پردھان منتری کی بات غلط ہو سکتی ہے، سی ایم کی بات غلط ہو سکتی ہے، مکھیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، لہذا یہ ایم ایل اے کی بات غلط ہو سکتی ہے، ایم پی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور لوگوں، اور دنیا والا تم پیسے والے کا احترام کرو الگ بات ہے، لہذا کسی عہدیدار کا تم ادب کرو الگ بات ہے، اس کا احترام کیا کرو الگ بات ہے، کسی مکھیا کا احترام کرو الگ بات ہے، کسی گورنر کا احترام کرو الگ بات ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھایا کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنی زبان سے نکالا کرتا ہے، پڑھا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قسم خدا کی وہ دنیا کے اندر تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جو فرشتہ عرش کو اٹھایا ہوا ہے، لہذا جو فرشتہ رکوع کیا ہوا، جو فرشتہ سجدہ کیا ہوا رہتا ہے، اور جو فرشتہ اللہ کی تسبیح 24 گھنٹہ بیان کرتا ہے، قسم خدا کی وہ فرشتہ اس قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کو فخر سمجھتا ہے۔ جو فرشتہ ہر وقت تسبیح پڑھتا ہے، جو فرشتہ اللہ کا حمد بیان کرتا ہے، جو فرشتہ اللہ رب العزت کے ہر وقت تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی سبب کا محتاج نہیں، رب کائنات کسی اسباب کا محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ربوبیت کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے، اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير۔ اور دنیا والا تم چاہتے ہو کہ ہم کسی کو عزت دے دیں گے، لہذا کسی کو کرسی میں بٹھا دیں گے اور کسی کو ہم احترام کیا کریں گے، اور اگر اللہ نے ہر وقت قرآن کریم کے الفاظ آتے رہتے ہیں، سونے کے وقت میں بھی قرآن کریم، جاگنے کے وقت میں بھی قرآن کریم، ارے کھانے کے وقت میں بھی قرآن کریم، سونے کے وقت میں بھی قرآن کریم، چلنے کے وقت میں بھی قرآن کریم، لہذا جو انسان چلتے وقت بھی قرآن کریم کو پڑھے اور سوتے وقت بھی قرآن کریم کو پڑھے، جاگتے وقت میں بھی قرآن کریم پڑھے، اور جس کا ورنہ بچھانا قرآن کریم ہو، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جن کے الفاظ درست ہو اور جن کے ترنم درست ہو، جن کے لہجے بھی درست ہو اور جن کے القاب بھی درست ہو، جن کے تلفظ بھی درست ہو، جن کے حرف کی ادائیگی ہو، لہذا ہم
होटलों में बैठकर और चाय की दुकान पे बैठकर हम उसके हिजो बयान किया करें, हम उसके कीमतें किया करें। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, लिहाजा ये हमारी जमीन गवारा नहीं करती है, ये हमारी जमीन गवारा नहीं करनी चाहिए। क्या जिसकी तारीफ रब्बे कायनात करे और जिसकी तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे और जिसके लिए दुआएं लिहाजा समंदर की मछलियां किया करे, दरियाओं की मछलियां किया करे, मौजी जानवर किया करे। क्या जो जानवर किसी इंसान को देखे तो उसको चीर डाले, लिहाजा किसी इंसान को देखे तो उसको फाड़ डाले, मगर जो इंसान कुरान करीम पढ़ता है, जो इंसान कुरान करीम सीखता है, जो कुरान करीम को अपने सीने से लगाता है, लिहाजा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए तो मौजी जानवर भी दुआएं किया करता है। उसके मकाम को तो देखिए, उसके मर्तबे को तो देखिए और उसकी औकात को भी देखिए। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, चाहे वो इंसान पूरा कुरान करीम याद करे, चाहे वो इंसान एक पारा कुरान करीम याद करे, या चाहे वो एक दो सूरा याद करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमान सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी हाफिज कुरान हो लिहाजा उसी के लिए नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक पूरा आदमी किसी जलसे में गया, तकरीर सुना और नुमान अख्तरी शायद बयान कर रहा था, कुरान के फजाइल के मुताबिक बयान कर रहा था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो चला गया, तकरीरों की सुन करके घर गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं। फजर की नमाज पढ़ा, वजू बना करके फजर की नमाज पढ़ा, कुरान सामने रख लिया, हर दिन का मामूल बना लिया कि वो कुरान में कहता था ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है। हर दिन ये मामूल बना लिया। जब इस आदमी की मौत हुई, इस बूढ़े की मौत हुई, दुनिया से चला गया, हिसाब किताब की बारी आई, परवरदिगार ने फरमाया कि ऐ मेरा बंदा, तुम्हारे तो कोई अमाल मेरे सामने नहीं, लिहाजा कोई चीज मेरे सामने नहीं, मगर तुम मेरी किताब से मोहब्बत किया करता था, मेरी किताब को अपने सीने से लगाया करता था और अपनी आंख में बसाया करता था, और तू अब मेरी किताब से मोहब्बत किया करता था। जा मैं उसी के सदके तुफेल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करते। परवरदिगार उसी कुरान करीम के सदके तुफेल में उस आदमी के गुनाह को माफ कर दिया। लिहाजा वो आदमी पाक साफ हो गया, लिहाजा कोई गुनाह नहीं, कोई खता नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, जो आदमी कुरान करीम से मोहब्बत करता है, कसम खुदा की उसके घर के अंदर रौनक पैदा होगी। लिहाजा जो आदमी कुरान करीम के पढ़ने वाले से मोहब्बत करता है तो उसकी औलाद भी हाफिज कुरान होंगे, लिहाजा उनकी नस्ल भी हाफिज कुरान होंगे, और उसके पोते पर पोते भी हाफिज कुरान होंगे, और उसके नवासे भी हाफिज कुरान होंगे। और जो आदमी अगर किसी हाफिज का हिजो किया करता है या किसी आलिम की बुराई किया करता है, नस्ल दर नस्ल तक उसके खानदान में हाफिज कुरान नहीं पैदा हो सकता। जो आदमी हाफिज कुरान से बुग़्ज़ करता है या आलिम उलमा से बुग़्ज़ करता है, इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आप कुरान करीम को पढ़ा करें, कुरान करीम को सीखा करें, चाहे एक पाव क्यों नहीं, वो आप कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए। जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होगी, लिहाजा उस घर के अंदर कभी फाका नहीं हो सकता है, लिहाजा उस घर के अंदर कभी भी बरकती नहीं हुआ करती है। इसीलिए कुरान करीम के पढ़ने वाले का अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी एजाज फरमाया है और उसकी इज्जत फरमाया है। और जो आदमी कुरान करीम पढ़ता है, लिहाजा दुनिया में भी इज्जत हुआ करती है और कब्र में भी इज्जत हुआ करेगी। ये कुरान करीम पढ़ने वाला, कुरान करीम की तिलावत करने वाला जो ही कब्र में जाएगा, ये कुरान कहेगा, ऐ मुनकिर नकीर क्या सवाल करते हो? अरे ये तो कुरान करीम पढ़ा करता था, कुरान करीम सुना करता था,
जो आदमी कुरान करीम पढ़े, कुरान करीम सीखे, कुरान करीम को अपने सीने में लगाए और कुरान करीम के पढ़ने वाले से मोहब्बत करे, कुरान करीम के पढ़ने वाले की इज्जत किया करना होगा। अगर इंसान कुरान करीम पढ़ने वाला होगा, अगर जो इंसान मस्जिद में जाकर कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाला होगा, मदरसे में जाकर कुरान करीम हासिल करने वाला होगा, यकीनन वो कब्र उसके लिए जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हो जाएगी और ये कुरान भी उसके लिए सिफारिश करेगा, ये कुरान भी उसके लिए सिफारिश करेगा। यही तक नहीं, अरे कुरान करीम के पढ़ने वाले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर भी इज्जत दिया, मौका नहीं है, वरना मैं कई बातें आपके सामने पेश करता, वक्त नहीं है, क्योंकि अकाबरीन का एक लंबी फरिश्त है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तवस्सुल से और उसकी मोहब्बत से इलाके के तमाम अकाबरीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसा इमदादिया में हजरत रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल और उनकी मोहब्बत में। मेरे भाइयों, कुरान करीम पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला जो ही मैदान महशर जाएगा, आज जैसे स्टेज देख रहे हैं, कितना लंबा चौड़ा स्टेज बना हुआ, काबरीन बैठे हुए, कोई सदारत करता है, कोई नजामत करते हैं, कोई नात खानी किया करते हैं, कोई तकरीर किया करते हैं। अरे कल कयामत के दिन यही मंजर आपके सामने होगा, स्टेज सजा हुआ रहेगा, याद अल्लाह की सदारत होगी और फिर मंच बना हुआ रहेगा और नाज़ी में जलसा ऐलान करेगा, है कोई कुरान करीम पढ़ने वाला आ जा। अरे हाफिज कुरान स्टेज में आ जा, हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और फिर उसके माँ बाप को भी बुलाया जाएगा और हाफिज कुरान के सर में एक ऐसा ताज रख दिया जाएगा, उसकी रोशनी इतनी होगी, इतनी होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान व तअल्लमहु उल्बिस यौमल क़ियामत ताजम मिन नूर ज़ूहु मिस्ल ज़ुई शम्स। अरे उसके सर में ऐसा ताज रखा जाएगा, ये पगड़ी रखे जाएंगे, अमामा बांधा जाएगा, उसकी रोशनी इतनी होगी, इतनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। और उसके वालिदैन को बुलाया जाएगा, उनके चचा को बुलाया जाएगा, उनके फूफा को बुलाया जाएगा, उनके रिश्तेदार को बुलाया जाएगा और उसके ऊपर खर्च करने वाले को बुलाया जाएगा और कहेगा, इसके ऊपर इखराजात करने वाले, इसके ऊपर ताउन करने वाले और इसके ऊपर मर मिटने वाले आ जा तो इस स्टेज में, लिहाजा स्टेज में आकर दुनिया वाले को बताया जाएगा, अरे ये कुरान करीम जो बच्चा, जो इंसान अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाता था, लिहाजा तुम उसको हकीर समझते थे और उसको तुम घटिया समझते थे। और जिसका बच्चा अगर कोई स्कूल में जाया करता, अगर कोई आदमी कॉलेज में जाया करता और जिनके बच्चे कॉलेज में जाते, लिहाजा तुम उसको फख्र समझते और उसका एहतराम किया करते थे। आज तू देखेगा जो कि अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे, ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के हाफिज कुरान के लिहाजा बाप को बुलाया जाएगा और उसके माबिनीन को बुलाया जाएगा, अरे इलाका वाले को बुलाया जाएगा कि ये भोरा के सरजमीन में आकर और मदरसा इमदादिया के ये दस्तार बंदी में आकर इतने लोग लिहाजा इन हाफिज कुरान का हौसले को बुलंद किया था, मौलाना साबिर साहब के हौसले को बुलंद किया था, मौलाना नुमान साहब के हौसले को बुलंद किया था और यहाँ के असातिज़ा के हौसले को बुलंद किया था, यहाँ के कमेटी लोगों के हौसले को बुलंद किया था। कसम खुदा की एक एक इंसान को बुलाया जाएगा, क्यों? इसलिए कि उनका तख्त कोई छोटा नहीं होगा, अरे बहुत बड़े तख्त होंगे, उस तख्त के अंदर में लिहाजा आपको भी बुलाया जाएगा, यहाँ के लोगों को भी बुलाया जाएगा कि आ
आने के बाद यूं ही छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदन के अंदर 2 जोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे, उसके बदन में 2 जोड़े कपड़ा पहनाएगा कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, उस वक्त क्या आलम होगा कि जो आदमी अगर किसी हाफिज कुरान के लिए ताउन करता है और जिसके हाफिज के लिए लिहाजा उसको पैसे और उसके मामिनीन बनता है कि आज तो पता नहीं चलता है। मेरे भाइयों, हम अपनी औलाद के लिए मकान पे मकान बना दिए और बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना दिए, दुकान पे दुकान बना दिए, जमीन पे जमीन खरीद दिए। कसम खुदा की, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान नहीं है, अगर आपका बेटा अरे कुरान करीम पढ़ने वाला नहीं है, और आपका बेटा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, और आपका बेटा शरीयत सुन्नत का पाबंद नहीं है, लिहाजा वो बेटा आपको लिहाजा जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेके नहीं जाएगा, बल्कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा, चाहे वो बच्चा गरीब का क्यों न हो, चाहे वो बच्चा अमीर का क्यों न हो, चाहे वो बच्चा मिस्कीन का क्यों न हो, चाहे वो बच्चा किसी मोहताज का क्यों न हो, लिहाजा उस बच्चे का मकाम और मर्तबा को देखिए। क्या है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा क्या है मेरा प्यारा बंदा, ऐ मेरे हाफिज कुरान सुन लो, ऐ मेरे हाफिज कुरान सुन लो। अरे तुमको दुनिया में लोग हकीर की निगाहों से देखता था, गिरी हुई निगाहों से देखता था, आज अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद है। लिहाजा मैं तुमको इजाजत देता हूँ कि 10 इंसान को जो जहन्नम में जा चुका है, लिहाजा उसको खींच करके जन्नत में लेकर के चले आओ। और आलिम से कहा जाएगा कि आप एक एक नहीं बल्कि 70 इंसान, 70 इंसान, 70 हजार इंसान को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के चले आओ। क्यों? इसलिए कि तुमने बड़ी दिक्कतें उठाई, तुमने तफसीर बयान किया, और तुमने मसाइल को बयान किया, और तुमने ये अकाबरीन के सामने, लिहाजा तमाम लोगों के सामने दीन की बात को फैलाया, किसी मसले को बताया। जाओ लिहाजा उन लोगों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के चले आओ। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, उस जगह में हम लोग भी होंगे। लिहाजा जहाँ कहीं ये नुमान अख्तर आपको ये पैगाम दे रहा है, मुफ्ती इदरीस साहब आपको पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, अरे आप हाफिज कुरान के लिए कुछ कर दो। अपने बेटे के लिए करोड़ों रुपए की आपने मंजिल बनाई, दुकानें बनाई, जमीन खरीदी। लिहाजा आपसे मौलाना साबिर साहब 1 करोड़ रुपया नहीं मांग रहे, 1 लाख रुपया नहीं मांग रहे, 1 डिसमिल जमीन नहीं मांग रहे, 10 लाख या 10 लाख रुपया नहीं मांग रहे, 10 डिसमिल जमीन नहीं मांग रहे, बल्कि कह रहे हैं कि ऐ लोगों, आप अपनी औलाद के लिए तो करोड़ों की आपने संपत्ति बना दी। आप मेहमाने रसूल के लिए, आप मेहमाने रसूल के लिए, कुरान करीम पढ़ने वालों के लिए, कुरान करीम के सीखने वालों